So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Addict. So this video is a very important video for all the students of plant pathology who are willing to write the ICAR PhD exam and the ASRB NET exam. Yes, if you know, like recently the ASRB has released the next notification for the ASRB exam, and if you are looking forward to crack this ASRB either NET or the ARS, SMS, STO, so this is the perfect video for you people. Plus, like if you're already in the MSc and wanting to prepare for the PhD in the subject of plant pathology, so in this video, our mentor will discuss in detail about like what are the units to be covered in all the units, where you have to cover all the units from, like for different sources or the books that you have to refer. See, in the plant pathology, there is a major concern with respect to the textbooks. There are no single textbook in which like all the content are covered. And you know, like if it is like a PhD level or the ASRB level, every day like the things are going to be updated. So you have to be up to date, and you have to like just refer the recent resources also with the standard books that you have for the years. And with respect to the classification and other parts, there are a lot of confusions with the different parts where you need to get the exact guidance to get the proper information. So in this, so we will be helping you in all these things, and we'll be guiding you on how exactly you have to start, what strategies to make, and how you have to cover the all the different units. Plus, in the starting, Parul will also explain you about what is ASRB NET and what is ICAR PhD, and how much different, like how different it is and what is their purpose, plus the exam pattern, the syllabus, everything will be discussed in detail from the scratch, starting from the pattern till the end of the syllabus. So watch this video completely to get the complete information about this exam. Still, if you have any doubts related to this subject of plant pathology, whether it is ICAR PhD or the ASRB, you can definitely comment on this video and we'll be happy to assist. Thank you so much. So you can continue. So hello everyone. So today we're going to discuss about A to Z for ICAR PhD as well as our ASRB. So in this video we're going to discuss beginning from the. So this video will be bilingual, so it will be beneficial for both the English medium as well as Hindi medium students. So please do watch till the end, because there are lot of helpful things that I have added in this video, and I've tried to make everything simplified for you. So firstly, we're going to see about that what is the exam pattern for the ICAR, JRF or SRF exam. So here, so firstly, the exam name is the ICAR All India Competitive Exam, JRF, SRF, PhD, and for SRF. So the conducting authority is NTA, that is National Testing Agency, and this is conducting this exam on behalf of the ICAR. So the eligibility for this exam is the master degree in the relevant subject. So if we are preparing for the plant pathology subject, so you must have your degree in MSc in the subject of plant pathology. So it is OGP based criteria. So for the general category, that should be more than 60%, and for SC and ST, that should be more than 50%. Then we have exam mode will be completely computer based test. The exam duration will be 2 hours, that means 120 minutes, and total marks will be 480. So 120 questions will be there, 4 marks each for the right and 1 negative marks for the wrong answer. And the language will be English only. So you have to prepare very nicely, clear your concepts. So if you are facing any problem in understanding the English, because many of you are not that thorough with this language, so you have to clear your concepts very nicely, understand it, so that you are able to attempt the questions and do it right. Nextly, the syllabus under the plant pathology. So basically the exam comes under 3 categories. So यहाँ पर आपको 3 categories में question पूछे जाते हैं. Firstly, जो part A रहता है आपका 20 questions will be of general knowledge, reasoning ability. So बहुत generalized question पूछे जाते हैं आपसे कि कोई institute का specific name आपसे पूछ लिया. अगर आपसे जैसे इस साल I think the director DG of ICR was asked, the vice chancellor of IRI was asked. तो इस तरीके से बहुत generalized question जो हैं वो पूछे जाते हैं. Then 50 questions will be of part B, that is the core group plant pathology. So इसमें आपके plant pathology से related जितने भी आपके core subject के हैं जो syllabus हम discuss करेंगे उसके questions पूछे जाते हैं. And one of the very major stress of the student, that is these 50 question from the part C that belong to the crop sciences 2, जिसके अंदर आपके entomology, nemato and sericulture के question जो है वो पूछे जाते हैं. Okay, so
इस अब द मेजर प्रॉब्लम कम्स हियर कि हमारे पास पार्ट बी जो हमारा प्लांट पैथोलॉजी है इसका डिटेल्ड सिलेबस हमारे पास है, बट जो पार्ट सी है जो क्रॉप साइंसेस का पार्ट रहता है इसका कोई भी डिटेल्ड सिलेबस नहीं है. सो मैंने मेरे कई सारे जूनियर्स स्टूडेंट्स जिन्होंने जो प्रिपेयर कर रहे हैं करंटली, तो उनसे जो 1-on-1 डिस्कशन किया, एंड दे आर फेसिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन दिस पार्ट सी, because they don't even know ki where to start, in how much depth we have to study the entomology or the nematology part, so that we do not compromise in our own subject, because the level is of both the part is equal, so we can't compromise in any one of them. So next thing, firstly, the very big motivation for preparing for this exam is the scholarship. So scholarship details for ICR PhD exam, that is for ICR SRF it is 37,000 per month for first and second year, and rupees 42,000 per month for the third year. So in the case of IRI, the most prestigious institute of our agriculture in India, that is rupees 31,000 for first and second year and rupees 35,000 for third year. And addition to that, there is a contingency जो कि like different stationery और इन सब चीज़ों के लिए books and all के लिए दी जाती है, that will be 10,000 rupees per year. Now here is the current 2025 seat matrix for ICR PhD. So here we're going to discuss about the total seat matrix. So total ICR seats जो रहती हैं plant pathology में PhD में, that is 96. In general category it is 49, for SC 14, ST it is 7, OBC non-creamiliers it is 26, for EWS it is 8, PWD physically incurred that is 5, and underprivileged states that is 2 seats. So the seat matrix is just, it's very not temporary, it's like temporary only, because every year they updated some seats, sometimes the seat got deducted and sometimes the seats got increased. So this is the criteria for this year. So now along with our PhD pattern, we are going to also discuss about the pattern of ASRB NET as well as the prelims of ARS. So here the same computer based test is there. Okay, we are having 2 hours, the time is same, but here are 150 questions. So 150 questions are there, and that will be all of MCQ based. 1 mark for each correct, and there is minus 1 by third. So 1 by third marks negative is there for each wrong answer. So here language is English and Hindi both. Subject sections is typically in English only. Okay, so qualifying is again for journal it is 50%, for OBC it is 45%, for SC ST PWD it is 40% approximate. यानी आपका जो नेट क्वालिफाई होगा वो नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको जर्नल कैटेगरी में हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, OBC के केस में आपको 45% चाहिए, SC ST PWD में आपको 40% मार्क्स चाहिए. ओके और जो इसमें प्रीलिम्स का क्राइटेरिया रहता है, ARS प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाई करने के लिए बेस्ड ऑन कि कितनी सीट्स जो हैं आपको दी गई हैं, इस बार कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उस सीट्स के अकॉर्डिंग लाइक इस बार प्रीलिम्स के अंदर जब मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है द रेशियो विल बी 1:15 रेशियो. ओके सो बेस्ड ऑन द सीट्स so that specific students are qualified for the mains examination. तो यहाँ पर 120 minutes are there and 150 MCQs are there, and this whole MCQs will be from your subject only, none other than your subject will be there. Okay, so this completely 150 questions will be from the plant pathology only in the ASRB NET and ARS prelims. Now this is the for ASRB NET the eligibility, and for the ARS. So ARS is basically the most prestigious job we can say, or prestigious designation we can say, that is agricultural research scientist. That is a dream of I think most of the students who are pursuing their MSc or PhD. They want to be ARS and they can be ARS. So for ASRB NET, the eligibility for the academic teaching and fellowship is the education qualification. Firstly, it was PhD, but now they have done it for like master student, both for the ARS and NET.
So master's degree or the equivalent in the relevant discipline, that is plant pathology, and it must be completed. They will give you a specific date. For example, इस बार जो एग्जाम आपका आएगा, अगर वो नवंबर में आएगा तो वो आपको डेट देते हैं अप्रोक्सीमेटली सितंबर के नियर अबाउट, लाइक अराउंड 30 सितंबर आपके पास पीडीसी होनी चाहिए. ठीक है, तो आपके पास जो भी ये एंड डेट आपको देते हैं उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए. दैट मीन्स यू मस्ट हैव योर पीडीसी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट विद यू. Then minimum 21 years age on 1/1/2025. No upper age limit for the net is there. In the case of ARS, that is basically the scientist recruitment, the education qualification is again master's degree. Then age limit will be minimum 21 years and maximum 32 years as on 1/8/2025. Okay, so there is some reservations in case of reserved categories as well as the PhD holders. Okay, now based on my experience, as this year only I have cleared my ASRB net as well as my ARS prelims. So based on my experience, I want to guide you few things that you can do and few things that you don't have to do during your preparation. So firstly, जब भी हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहली चीज हमें जो क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में, दैट इज अबाउट द सिलेबस एंड सेकेंड थिंग अबाउट द पैटर्न. ठीक है, जब तक हमें ये दोनों चीजें क्लियर नहीं होती तब तक हम कोई भी प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर पाते हैं. एंड वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज दैट व्हाट टू रीड, व्हाट डोंट टू रीड, वेदर वी आर डूइंग द राइट थिंग, वेदर वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग. सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन दिस एग्जाम, so that we are preparing our, if we know that okay there are just MCQ based question, there are like directly question is asked and if we are given with the 4 options we have to select one. तो उसके basis पर we are just reading the factual things. But this was the earlier pattern. Now the pattern changes to very conceptual based. Now for every single exam you have to clear your concepts deeply. आपको जो भी, अगर आप कोई फिनोमिना पढ़ रहे हो, आप कोई प्रोसेस पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई टेक्निक पढ़ रहे हो, तो आपको उसके पीछे का प्रिंसिपल, उसकी प्रोसेस, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस चीज में वो हेल्प करती है, आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. बिकॉज अभी जैसे अगर आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपका कंसेप्ट डिटेल में क्लियर नहीं होगा, आपको उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता, आपको रीजन नहीं पता, सो यू कांट आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Okay, so here are different categories of questions that are asked in both ASR PhD as well as your NET exam. So the first category we have is the assertion and reasoning. That is a very big headache for most of the students because इनमें जो first और second option आपका रहता है वो बहुत ही ज़्यादा confusing रहता है, because in both first and second option that is कि both assertion and reason are correct. But the difference between both option is that whether the reason is explaining the assertion or not. तो अगर आपको ये पता है कि ठीक है दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन अगर आपको उनके बीच का लिंक नहीं पता है तो आप इसको आंसर नहीं कर सकते हो. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं वो इन्हीं 2 ऑप्शंस के अंदर गलत होते हैं. सो असर्शन एंड रीजनिंग के लिए यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट्स वेरी थॉरली. कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई टेक्निक पढ़ रहे हो, अगर मान लो हम एलाइजा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एलाइजा जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसमें उसका प्रिंसिपल क्या है, कि वो एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पर बेस्ड होती है. देन उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, अगर कोई टेक्निक में कोई स्पेसिफिक सा रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक मान लो डाई यूज कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूज हो रही है वहां पर, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देन हम क्या पढ़ते हैं उसके बाद कि उसकी एप्लीकेशंस कहाँ है, कि प्लांट वायरसेस या कोई भी पैथोजन दूसरे हैं उनकी डिटेक्शन के लिए हम एलेक्सा टेक्निक को यूज करते हैं. ओके तो इस तरीके से हमें उसके क्रिस्प पॉइंट्स जो है प्रॉपरली वो हमें क्लियर होने चाहिए. सेकेंड इज द अरेंजिंग ऑप्शंस इन द करेक्ट सीक्वेंस, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप पैथोलॉजी के रिस्पेक्ट में बताऊं तो हम डिजीज साइकिल पढ़ते हैं. तो डिजीज साइकिल के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्वाइवल गोइंग टू द डिसेमिनेशन. तो यहाँ पर हमें उसकी कंप्लीट जो सीक्वेंस है प्रोसेस की वो हमें पता होनी चाहिए. तो यहाँ पर उसे हमें अरेंज करना होता है, ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से देंगे, एंड देन यू हैव ऑप्शंस भी लाइक की बी डी सी ई ए एफ लाइक दैट, और इस तरीके से 4 ऑप्शंस वो देंगे एंड यू हैव टू सेलेक्ट दैट विच इज द करेक्ट सीक्वेंस. थर्ड कैटेगरी इज डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके इफ आई आस्क यू हु हैव गिवन दी टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम एंड ऑप्शन आपके पास कोई भी 4 होंगे, देन यू नो कि ये बिजर्निक ने दी थी.
देन वी हैव स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे कि जैसे असर्शन रीजन में था, एक्सप्लेनेशन का था, इन दिस यू विल गेट टू स्टेटमेंट्स। इसके अंदर से आपको पूछा जाएगा कि here are the two statements and you have to select that whether both are correct, both are incorrect and any one of them is correct। तो यहाँ पर जो है आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। देन यू हैव मैच द फॉलोइंग ऑल्सो। तो कुछ रिलेटेबल चीजें होती हैं, जैसे आपके आईसीआर के एग्जाम्स में पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल द रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आपको रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स दे देंगे, एक तरफ आपको डिफरेंट बैक्टीरियाज दे दिए जाएंगे, एक तरफ उनसे बनाई हुई रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स दे दी जाएगी, दैट यू हैव टू मैच। ठीक है, वैसे ही फॉर एग्जांपल एक तरफ आपको फ्रूटिंग बॉडीज दे दी गई, दूसरी तरफ आपको जेनेरा का एग्जांपल दे दी गया, तो आपको यहाँ पर मैच करना होगा दैट विच जेनेरा इज फॉर्मिंग क्लिस्ट्रोथीशिया, विच इज फॉर्मिंग एपोथीशिया, विच इज फॉर्मिंग पेरिथीशिया। ठीक है, तो इस तरीके के मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। So, how much marks or the rank to be scored for getting IRI? So, the dream university of every single student. So, here you just have to keep in mind that if you are preparing for your exam and you want to go to IRI, then you have to secure the single digit rank. That's it. You have to be in the single digit rank to get into this IRI, especially if you are in a general category. जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनके अंदर वेरी कर सकता है, बट फॉर द जनरल कैटेगरीज योर रैंक मस्ट बी सिंगल डिजिट इफ यू वांट टू कम टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी इन योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड यू वांट टू डू अ वेरी गुड रिसर्च। सिंगल ओके, सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप एसआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और जो आप नेक्स्ट नेट के लिए एआरएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ द एग्जाम्स एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। सो यहाँ पर हम किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर हर यूनिट का सिलेबस देखेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट या किस किस तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, एंड देयर इज सरप्राइज फॉर यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो जस्ट गो विद दिस। So firstly, the first unit that we have is the history and principles of plant pathology, which is a very fundamental, very basic unit, and you have to start always with this unit, because if your principles are not cleared, you can't go to advanced specific units. ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल्स जो है वो क्लियर होने बहुत जरूरी। अब यहाँ पर आप टॉपिक्स देखिए, माइलस्टोन इन फाइटोपैथोलॉजी विद पर्टिकुलर रेफरेंसेस टू इंडिया। तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, तो हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि हमें फर्स्ट टाइम में याद भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप याद कर रहे हो, देखो हिस्ट्री यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड कि इस तरीके की जो ईयर रिमेम्बरेंस चीजें होती हैं या बहुत फैक्चुअल चीजें जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है हिस्ट्री की स्पेशली, तो वो आपको एक बारी में याद नहीं होती है। द ओनली फंडा, लॉजिक और एनीथिंग यू कैन नेम दैट, उसको याद करने का एक ही सिंगल टेक्निक है, दैट इज मल्टीपल रिविजन्स। सो जस्ट डोंट गो कि लाइक यू आर सिटिंग फॉर लाइक 4 hours एंड जस्ट cramming the history and again, then also you will just forget many of the things after a week only. So instead of that, once just go with that, okay, you have listened, and now daily just keep a specific time for that, that daily for half an hour I'll just remember the Indian scientist, what are their contribution. Next day I'll just go with the like bacteriology related scientist, next day I'll go with the epidemiology related. So just divide it into a sub parts and daily revise the short parts only. So as compared to going for like a long thing in a single day, it will be very very beneficial for you to learn that things or to remember that things till the your exam date and even after that. So firstly you have to prefer the Indian scientist. Okay, अगर वो आपको सिलेबस दे रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी टेलिंग यू व्हाट यू हैव टू रीड स्पेसिफिक थिंग्स। तो हिस्ट्री आपको पढ़नी है, बट मेजरली यू हैव टू फोकस ऑन द इंडियन साइंटिस्ट। देन मेजर एपिडेमिक्स एंड देयर सोशल इम्पैक्ट्स। तो बहुत लिमिटेड से हम जो एपिडेमिक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हम डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं, हम कॉफी रस्ट की बात करते हैं, हम बंगाल फेमाइन की बात करते हैं। तो इस तरीके के जो बहुत मेजर एपिडेमिक्स जो आए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, किस वजह से आए हैं, स्पेसिफिक उनका ईयर कौन सा है, या फिर वो इंट्रोड्यूस कहाँ से हुए हैं, जो कि हम
क्वारंटीन एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेजर जो एपिडेमिक्स हैं जो हमारी इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुए, ठीक है, कहाँ से वो आए हैं, तो ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। देन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ केमिकल, अब ये जिस तरीके से इन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं, राइट, तो आपकी माइकोलॉजी की हिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, एपिडेमोलॉजी, मैनेजमेंट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो आपके हैं, इन सब की हिस्ट्री। सो आपको इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कंटिन्यूसली रिवाइज करना है, ओके। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ठीक है, इसके अंदर आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि किस किस बेसिस पर हम डिजीजेस को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, कौन से पार्ट को ये अफेक्ट कर रही है, कितनी फ्रिक्वेंटली ये आ रही है, कितनी सीवियर ये आ रही है, एंडेमिक क्या होता है, स्पोरेडिक क्या होता है, मेजर एग्जांपल्स क्या हैं, तो वो हमें यहाँ पर बात करनी होती है। देन फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन उनकी, कॉज पोस्टुलेट, वेरी बेसिक, वेरी फंडामेंटल, येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल एंड डिस्पर्सल ऑफ द पैथोजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन, कॉलोनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। अब ये जो टॉपिक्स आपके रह जाते हैं, दीज आर ऑल्सो सेम। अब मतलब फर्स्ट यूनिट बेसिकली आपकी डायरेक्टली रिमेम्बरेंस की यूनिट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें कोई नहीं, इसमें याद रखने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, तो इनको आपको उस तरीके से ही डील करना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको हिस्ट्री का बताया था वैसे ही चीजें आपको यहाँ याद करनी है, कि आपको ये नहीं लेके चलना है कि बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप उसको वाइस वर्सा पढ़ो ना, कि अगर आपको ये चीज हो गई कि अगर एक पढ़ रहे हो आप सर्वाइवल के एग्जांपल सेपरेटली याद कर रहे हो, आप डिस्पोजल के अलग से याद रख रहे हो, सो यू कैन रिमेंबर इन वन वे लाइक दैट कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेजर पैथोजन दैट इज द रस्ट पैथोजन। सो अगर जो मेजर मेजर आपके पैथोजेंस हैं आपको सिर्फ उन्हीं के ध्यान रखने हैं। अगर आप रस्ट की बात कर रहे हो तो रस्ट का एक साथ याद रखो कि रस्ट का पैथोजन सर्वाइव कहाँ करता है, डिस्पर्स किसके थ्रू होता है, रिपीटेडली इंफेक्शन कितना कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या ये एक ही साइकिल में खत्म हो जाता है या मल्टीपल साइकिल्स बनाते हैं, तो वो हमारा रस्ट का सेक्शन एक साथ कंप्लीट हो गया। सिमिलरली गो फॉर स्मट, डाउनी मिल्ड्यू, जो भी मेजर पैथोजेंस है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर मेजर फोकस करना है दैट व्हाट आर योर मेजर पैथोजेंस, जो कि मेजर मेजर डिजीजेस आप पढ़ते हो, जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं। Now, this was the surprise that for you, I have just broadly analyzed your 5 years paper from beginning from like 2021 to 2025. तो ये मैंने पेपर्स आपके एनालाइज किए हैं और हर यूनिट के अंदर किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो मैंने आपको कुछ एनलिस्ट किए हैं यहाँ पे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि एटलीस्ट आपको इन टॉपिक्स को थोड़ा प्रायोरिटी देनी है या इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज के अंदर जैसे 25 के अंदर वायरस टर्म्स के पूछ लिया, कॉज पोस्टुलेट का ईयर पूछ लिया, या स्पेसिफिक कोई कॉज पोस्टुलेट पूछ लिया कि ये होता है या नहीं होता, या कौन सी स्टेटमेंट्स कॉज पोस्टुलेट्स के लिए ठीक हैं या नहीं है। 23 में लाइक क्लब रूट के इन्वेंटर्स कौन थे, साइंटिस्ट से रिलेटेड पूछ लिया, कॉटन विल्ट पे काम किसने किया सबसे ज्यादा, तो हिस्टोरिकल पॉइंट से पूछा। 22 के अंदर जैसे जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एंटन डी बेरी हो गया, टी और डीनर, तो इन्होंने वायरॉइड्स की डिस्कवरी की है। बेजरनिक जो है इन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम दिया है। तो इस तरीके के जो मेजर साइंटिस्ट हैं जिनका डायरेक्टली एक आपके प्लांट पैथोजन का इन्वेंशन के अंदर या उनकी डिस्कवरी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो आपको जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके। सेकेंड यूनिट इज अबाउट द लेबोरेटरी एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। अब ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है आपकी, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है अगर आप इसको उस अकॉर्डिंग पढ़ो, क्योंकि ये पूरी यूनिट आपकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे है। सो इन दिस इफ यू आर ऑलरेडी अ मास्टर स्टूडेंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, सो बहुत सारी चीजें जो हैं ये आपने लैब में काम भी किया है, आपने खुद इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, इन टेक्निक्स के साथ डील भी किया है, तो आपको इनको रटना नहीं है। अगर आप वो चीजें प्रैक्टिकली एक बार देख लोगे लैब के अंदर या किसी के साथ डिस्कस कर लोगे, अपने सीनियर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, तो ये चीजें आपको वैसे भी याद रह जाएंगी। जैसे कि यू आर यूजिंग द मीडिया फॉर कल्चरिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम पैथोजेंस को आइसोलेट कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स है। फंजाई को आइसोलेट हम इंडियन मेथड से कर सकते हैं और उन कल्चर्स को हम प्योर इस तरीके से कर सकते हैं। जो भी कॉज पोस्टुलेट्स आप प्रूव करते हो उसके अंदर आप यही जो चीज देखते हो कि सबसे पहले आप आइसोलेट करते हो, तो डिफरेंट पैथोजेंस, बैक्टीरिया को आइसोलेट करने का आपके पास अलग तरीका है, फंगस को आइसोलेट करने के बाद आपके पास डिफरेंट तरीका है। तो आपको वो चीज देखनी है कि किस पैथोजन को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं एंड देन उसको हम प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं, एंड द थर्ड इसी के अंदर अगर आप देखो तो हम उनको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं।
तो ये तीनों चीजें जो है ये आप बहुत प्रैक्टिकल बेसिस पर देख सकते हो कि क्या क्या टेक्निक्स हैं जिससे हम उसे लॉन्ग टर्म तक संभाल कर रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करवा के रख सकते हैं। वैसे ही तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आ गई आपकी। आइसोलेशन है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया। सो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, दीज 3 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर वेरी नाइसली, और बहुत प्रैक्टिकल बेसिस पर आपको डिस्कस करते हुए चलना है कि अगर अब हम कॉमन डिस्कशन कर रहे हैं तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अच्छा क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो आपको बस क्या पता होना चाहिए कि अच्छा क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम इस तरीके से चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। पेपर लेवल होती है, 2 फेजेस होते हैं इसके अंदर, ये काम करता है, सेकेंड का रूल ये होता है, और इससे हम इन पैथोजेंस को इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें रटनी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। तो दिस होल यूनिट इज जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक्स दैट यू आर और इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू आर डीलिंग अराउंड योरसेल्फ। ओके, सो मेथड्स ऑफ इनोकुलेशन, ठीक है, देन मेजरमेंट ऑफ द प्लांट डिजीजेस, जिसको जैसे फाइटोपैथोमेट्री हो गई कि हम इंसिडेंट्स को कैसे मेजर करते हैं, व्हाट इज सीवियरिटी, सीवियरिटी को फील्ड में आप कैसे मेजर करोगे, हाउ विल यू प्रिपेयर द AUDPC, दैट इज एरिया अंडर डिजीज प्रोग्रेस कर्व, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी डिजीज जो है वो किस तरीके से टाइम के साथ प्रोग्रेस कर रही है। तो ये सब चीजें जो है आपकी बहुत प्रैक्टिकल लेवल की चीजें हैं, जो कि आप अपने कुछ टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो, कुछ टेक्निक्स आपके बैचमेट्स यूज कर रहे होंगे अपने पैथोजन के साथ डील करने के लिए, देन कुछ आपके सीनियर्स कर रहे होंगे। सो अगर आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से करनी है, यू कैन जस्ट डिस्कस दिस टॉपिक्स with each other around your all the friends, you can discuss it around and you can very easily learn this unit. Okay, अब ये सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं, यहाँ पर प्रोब्स हैं, देन ब्लोटिंग टेक्निक्स हैं हमारे पास, एलाइजा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, PCR इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यू हैव, ये तो सारे इंस्ट्रूमेंट है जनरली, ऑटोक्लेव, होटेर ओवन। तो ये दिखने में जितनी बड़ी यूनिट है ये इतनी बड़ी यूनिट नहीं है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, हाँ, माइक्रोस्कोपी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। एक तो आपको माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि व्हाट इज ट्यूरेट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डायफ्राम, ओके, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप जो आपके हैं, ठीक है, कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है तो वो इस चीज पे काम करता है, और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज करके हम इस तरीके से वाइबल एजेंट्स को देख सकते, ठीक है। तो उनके अंदर मेजर किस प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा है और इनकी मदद से हम किस तरीके के पैथोजेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये चीज हमें ध्यान देनी, ठीक है, बस इतना पढ़ना है इसके अंदर। देन इसके अलावा इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब यहाँ देखिए कि अभी क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो लैंप, तो लैंप के अंदर ये डायरेक्टली पूरी कैटेगरी आपकी रह जाती है कि कौन कौन सी आइसोथर्मल टेक्निक्स है, ठीक है। तो अब ये टॉपिक जब आपको यहाँ पता लग गया कि एग्जाम के अंदर पूछा गया, पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस से हमें एक तो ये ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमें फोकस बहुत अच्छे से करके चलना है, कि उन टॉपिक्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर वन। तो इसको हमें, इसलिए हमें पास्ट ईयर पेपर्स को डिटेक्ट करना, उन्हें समझना, उनके पैटर्न को एनालाइज करना बहुत जरूरी रहता है। तो यहाँ पर अब जैसे आपने लैंप देखा, तो लैंप से आप मेजरली कौन सा टॉपिक देख सकते हो कि लैंप जो है दैट इज एन आइसोथर्मल टेक्निक, दैट मीन्स कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो किस और कौन कौन सी आइसोथर्मल टेक्निक्स हैं, जो 2-3 टेक्निक्स हैं उनको हम एक साथ कंपैरिजन में याद करो कि अच्छा ये तीनों ही आइसोथर्मल टेक्निक्स हैं, मेजर डिफरेंस जो तीनों के अंदर है वो इन 2 पॉइंट्स के, तो आपको एक साथ तीनों चीजें जो है वो रिमेंबर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे दूसरा इम्यूनोलॉजी, आपके एलाइजा या इम्यूनो एसिस का प्रिंसिपल पूछा जाता है, ठीक है। देन 23 में आपके सेरोलॉजिकल बेस्ड टेक्निक्स, अगेन देखो एलाइजा का क्वेश्चन जो है वो मोस्टली एलाइजा हो गया आपका, PCR हो गए, इनके क्वेश्चंस जो है वो बहुत रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको एलाइजा, एलाइजा के टाइप्स जो हो गए, PCR, PCR के जो टाइप्स होते हैं इनको आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है।
Then very important topic, if you are studying for the preparing for the ASRB net or you are for PhD, this टॉपिक इज वेरी मैंडेटरी, क्योंकि अगर आप कह रहे हो ना कि आप बीएससी से एमएससी के अंदर आए और अब आपको एमएससी से आगे जाना है, तो बीएससी लेवल तक हम इस टॉपिक को बहुत ब्रॉडली टच करते हैं, कुछ कुछ टर्म्स को हम समझते हैं, बट फॉर योर एएसआरबी, क्योंकि पास्ट ईयर में इस पेपर से, इस स्पेसिफिक टॉपिक से, इस यूनिट से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट कंसेप्ट से रिलेटेड, बहुत टफ नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन दे हैव कवर्ड दिस यूनिट वेरी वेरी नाइसली इन दिस पास्ट ईयर्स। तो आपको ये यूनिट जो है, ये कोर, अब देखो हर यूनिट का ना एक डिफरेंट पैटर्न है। हिस्ट्री की जो यूनिट थी दैट इज कंप्लीटली, हम कह सकते हैं कि हमें चीजें डायरेक्टली याद ही करनी पड़ेगी, देयर इज नो कंसेप्ट इन इट, ठीक है। सेकंड जो थी दैट वाज वेरी प्रैक्टिकल बेस्ड, कि आप आसपास चीजों को देखोगे, उन्हें डील कर रहे हो, आपने ऑटोक्लेव देखा, आप उन्हें चीजों को यूज कर रहे हो, तो आपको वो चीजें वैसे याद रह जाएंगी, बिकॉज यू आर यूजिंग द लेमिनार एयर फ्लो, यू आर यूजिंग द पीसीआर, आपको पता है वहां पे प्राइमर्स होते हैं, क्या होते हैं प्राइमर्स, तो दैट इज वेरी प्रैक्टिकल बेस्ड यूनिट। अब ये जो यूनिट है दिस इज प्रैक्टिकल बेस्ड, राइट, लेकिन इसमें कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको इसमें इतनी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, आपको उनके बारे में, उनका सिग्निफिकेंस, उनकी पूरी प्रोसेस है वो किस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड है, कैसे एसएआर जो है, आर जीन्स हो गए, देन एसएआर हो गया, और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, दीज ऑल आर वेरी इंटर रिलेटेड। तो किस तरीके से ये पूरी जो यूनिट है, इसमें काफी टॉपिक्स जो है वो सभी आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो इसके अंदर आपको पूरी उनकी प्रोसेस को समझना, एक स्टोरी लाइन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी जो है, इसके अंदर डायरेक्टली उन्होंने कोर टॉपिक्स दिए। तो इसको जब भी आप रीड करोगे, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको रीड करना शुरू करना है, कि फर्स्टली ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली आप उठा रहे हो यहाँ पे। देन जैसे फर्स्टली आप देखो कि ऑल्ट्रेशन, तो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस की वजह से क्या क्या प्लांट के अंदर चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे उनकी फिजियोलॉजी जो है वो चेंज होती है, उनके फोटोसिंथेसिस में क्या फर्क है, उनके रेस्पिरेशन में क्या फर्क आता है, ये सब हमें देखना है। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस, फिर आपको ये पूरी प्रोसेस, ये सब कुछ एक साथ आपका क्लियर होगा, ठीक है। एलिसेटर क्या होते हैं, इफेक्टर क्या होते हैं, कैसे वो प्लांट के अंदर एंट्री करते हैं, प्लांट कैसे अपना रिस्पॉन्ड में डिफेंस करता है, और किस तरीके से इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्या डिजीज होगी, क्या ससेप्टेबिलिटी आएगी या रेजिस्टेंस आएगी। तो ये सब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंगली, अगर आपको इनकी प्रोसेस, एक पिक्चर लाइन अगर आपकी क्लियर हो जाती है माइंड के अंदर, कि इस तरीके से कि अगर आपको जिस टाइम पर आपको वो स्टोरी माइंड में एक पिक्चर बननी शुरू हो जाए ना, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, किस तरीके से पैथोजन आया, वो अपना ये प्रोटीन लेकर आया, उसको इस प्रोटीन ने रिकॉग्नाइज किया होस्ट के ऊपर, और फिर इस तरीके की इम्यूनिटी आई, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो जिस दिन आपकी ये स्टोरी बननी शुरू हो जाएगी, दैट मीन्स कि आपकी यूनिट जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कि इस यूनिट से कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे गए, और बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, ठीक है, जिसमें आपको एक तो ये विक्टोरियन के बारे में लिखना है, क्योंकि विक्टोरियन एक एक्सेप्शन रहता है कई चीजों में, बाकी टॉक्सिन्स के कंपैरेटिवली थोड़ा स्पेसिफिक है, क्योंकि ये अकेला ऐसा टॉक्सिन होता है जो कि कंप्लीट टॉक्सिन हाइपोथेसिस को जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स जब आप देखते हो ना, तो उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं रादर देन की जो जनरली चीजें होती है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस या वन जीन वन प्रोटीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, इनसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड से पूछ लेंगे, सैलिसिलिक एसिड जैस्मोनेट्स, क्योंकि डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन जो है वो एसएआर आईएसआर, तो इसमें सिलेबस के अंदर डायरेक्टली जो आपको टर्म्स दे रखी हैं, आपको वो टर्म्स वैसे वैसे क्लियर करने हैं। आपको बहुत ब्लंटली कुछ भी ऐसे नहीं पढ़ने लग जाना, आपको स्टिक रहना है पूरा सिलेबस के ऊपर, जैसे जैसे जो जो टर्म्स जो है वो यहाँ पर गिवन है, आपको वैसे वैसे इन चीज़ों को लेके चलना है। अगर उन्होंने मैकेनिज्म बोला है तो आपको वो पूरा एक टॉपिक इस तरीके से तैयार करना है कि अच्छा, अगर मैकेनिज्म से रिलेटेड पूछा जाता है तो हमें पता है क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं। अगर वो पीआर प्रोटीन के बारे में पूछ रहे हैं तो हमें पता है कि पीआर प्रोटीन क्या होते हैं, किस साइंटिस्ट ने दिए थे, कितनी कैटेगरीज होती हैं इसकी, और इसका काम क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें जैसे आरएनए, एंटीसेंस आरएनए से पूछ सकते हैं, यहाँ पर पूछा भी गया आई थिंक। ये देखिए,
टॉक्सिन से रिलेटेड पूछा है, पीआर प्रोटीन से रिलेटेड पूछा है इन्होंने क्वेश्चन, एसएआर पूछा है, डिफरेंट टॉक्सिन्स पूछे हैं। अब टॉक्सिन्स का यहाँ से जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर उन्होंने जो केमिकल वेपन्स हैं, यानी पैथोजन किन किन वेपन्स का यूज करते हैं, चाहे वो एंजाइम्स है, चाहे वो टॉक्सिन्स है, चाहे वो कुछ ग्रोथ रेगुलेटर में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और उनके रिस्पॉन्ड में डिफेंस मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली केमिकल वेपन्स और डिफेंस का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है एसआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, तो इसके अंदर जो चीजें हैं आपको थर्ड यूनिट में, जिगजैग मॉडल आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, ठीक है, और इसके अलावा केमिकल वेपन्स, डिफेंस मैकेनिज्म। तो मेन चीज है आपको इस सिलेबस के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी आपको गिवन है, आपको उन हर एक टर्म का जो मतलब है दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू in every single term that is given, that whenever if I am asking you that tell me that what is SAR and what is ISR, I'm not just asking that go in very detail and tell me the process of that, just tell me the basic concept that what is SAR, what it is doing, and what is ISR, what is the difference, general difference between both of this type of resistance। तो आपको हर एक टर्म का मतलब जो है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, then we have the unit 4 mycology। The small it seems to be, the more lengthy it is, because in this they have just given the topic of classification. Now they have, most of the students are very confused with related to this classification, that what we have to rate. There are lots of classification. We have around like 4-5 major classification for that, like Sacchardo is there, Alexopolis is there, Ainsworth is there, Kirk is there. But if they are mentioning that you have to follow the Kirk et al classification, then why should we get confused with the another one? First thing, so in this Kirk et al also, what you have to majorly, how to understand the classification, how to remember the classification, what should be the strategy to start learning, that how should we start learning the classification, because it is itself a very large topic. The whole like introductory, that introduction to fungi, HC Dubey book is like this much book it is there, and it contains almost the classification only in this whole book. So basically when you are preparing, and this is the major topic, other than that you can cover everything in mycology, that is not a very big thing. Okay, so major thing is about the classification for that. Other than classification, if it is there, then you have to remember the life cycle of important phytopathogenic fungi. So some students will be confused कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो important है या वो नहीं है। तो जब आप कभी भी कोई भी आप अपने नॉर्मल कोर्स पे आप पढ़ा होगा, तो उसके अंदर अब आपको जो भी नाम जो जनरली याद रहते हैं ना, वही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जब भी अगर मैं जाइगोमाइसिड्स की बात करती हूँ, तो हमारे पास 2 ही नाम आते हैं, म्यूकर, राइजोपस। हम ओमाइसिड्स की जब बात करते हैं, हमारे पास आता है पीथियम, फाइटोपथोरा। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे रखना है, जो भी हम मेजर डिजीजेस पढ़ते हैं, हमें उनकी ही लाइफ साइकिल पढ़नी है। कोई स्पेसिफिक अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप क्लब रूट का स्पेसिफिक एग्जांपल देख रहे हो बहुत ज्यादा, तो आपको क्लब रूट के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मोडियोफोरा के अंदर एक ही पढ़ते हैं। तो हर एक क्लास जो भी आप पढ़ोगे, उसमें जो एक सबसे मेजर फाइलम, जो कोई बहुत मेजर क्रॉप में आपकी डिजीज कर रहा होता है, मेजर क्रॉप की डिजीज होती है, तो वही हमें उसकी लाइफ साइकिल ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके अंदर भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत वर्ड टू वर्ड चीजें जो है वो रिमेंबर करने लग जानी है। आपको उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि जो फाइलम आप पढ़ रहे हो, उस फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको चाहे वो ओमाइकोटा, जाइगो, एस्को, बेसिडियो, ठीक है, काइट्रीडियो, हर एक फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको उसका एक फ्लो चार्ट बना के याद रखना है आपको कि इस फाइलम में इतनी क्लासेस है, इतनी फैमिलीज, और ये इंपॉर्टेंट जेनेराज है। ठीक है, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में चीजों को याद करना है, और आपको फोकस सिर्फ मेजर जीनस पे करना है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और कोई भी ऐसा रहता है ना कि एक ही फैमिली में 2-3 जेनेराज हैं आपके, तो उनको हमेशा कंपैरेटिवली याद करना। इंडिविजुअली वो भूल जाओगे, कंपैरेटिवली चीजों को पढ़ो कि ये 3 है, तो इन तीनों में डिफरेंस कहाँ पर है और सिमिलैरिटी कहाँ पे। दैट्स इट। ओके,
इसके अलावा इकोनॉमिक माइकोलॉजी, एडिबल एंड एंटोमोजेनस। अब इसके अंदर आपके पास कुछ कुछ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि दिस फंजाइज आर एडिबल, ये जो फंजाई होती हैं ये टॉक्सिक होती हैं। उनके जो कॉमन नेम्स हैं उनसे अगर मैच द फॉलोइंग में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जैसे शू स्ट्रिंग फंजाई किसको बोलते हैं, हनी फंगस किसको बोलते हैं, अर्थ स्टार किसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हाईलाइटेड पॉइंट्स जो होते हैं, जो आपके बुक के अंदर बोल्ड किए होते हैं, उन पे हमें फोकस लेके आना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इस साल का ही अगर हम एनालाइज करते हैं, बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। टेक्सोनॉमी में एस्कोमाइसीड्स की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला कि आपको जनरल कैरेक्टर्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, देन होलोकार्पिक, यूकार्पिक, टर्मिनोलॉजी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर साइनेमेटा क्या होता है, ठीक है, स्टेराइल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज कौन कौन सी होती हैं। अब डिजीजेस से रिलेटेड भी आपको मेजर डिजीजेस जो है वो पढ़नी है, उसकी एक वैसी स्पेसिफिक यूनिट है आपकी। फिर बोट्राइटिस सिनेरिया, कोई अगर उसका खास करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि हमें पता है कि एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है कि जो फ्रूट्स के अंदर जो ग्रे मोल्ड होता है वो बोट्राइटिस करता है। अब ये जो ग्रे मोल्ड होता है, ये बोट्राइटिस की क्या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है, आप कैसे इसको माइक्रोस्कोप के अंदर आइडेंटिफाई करोगे, क्या ये स्पेसिफिक सिम्टम्स कौन कौन से प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से चीजों को समझ के हमें याद करना है। Okay, then brown leaf spot, because brown leaf spot of rice is again the most epidemic disease. Bengal famine, it is there. So they are asking about, whenever you will just analyze, you will see that you will get a very specific disease of any phylum or class. You're not getting randomly like sphaerocydes or something randomly आपसे पूछा गया है. Major pathogens are only asked that are causing any specific disease. Whether it is causing very great epidemic, तो उनकी ही हम बात करते हैं यहाँ पे. ओके, देन सी बेसिडियो के अंदर जनरल कैरेक्टर हम बात है डोलीपोर सेप्टा की करते हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा. यस, इस तरीके से आपके डिफरेंट. देन वी हैव द नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट, दैट इज प्लांट बैक्टीरियोलॉजी. सो बैक्टीरियोलॉजी इज अ वेरी, आई कैन से इट्स अ वेरी स्वीट यूनिट. स्वीट इन द सेंस कि बहुत लेंथी नहीं है ये, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर अगर हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं तो ये यूनिट आपकी बहुत जल्दी कवर होने वाली यूनिट में से एक है. ओके, सो दिस यूनिट वाज यूज्ड टू बी माय स्ट्रेंथ. कि मुझे ऐसा होता था कि जब भी मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी ना कि मुझसे नहीं हो रहा, सिलेबस नहीं कवर हो रहा, आई यूज्ड टू जस्ट रिवाइज द बैक्टीरियोलॉजी पार्ट. इट जस्ट गिव मी अ पुश और गिव मी अ मोटिवेशन दैट ओके ये तो कंप्लीट हो गई जल्दी से, अब हम दूसरी यूनिट पे चलते हैं. सो दिस इज लाइक अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स आर देयर इन दिस यूनिट. ठीक है, तो डायरेक्टली आप उनको समझ लेते हो, चीजें बहुत क्रिस्प सी यूनिट है बेसिकली आपकी. तो आपको वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए. देन उसके बाद इसकी कॉम्पोजिशन, तो इसके कॉम्पोजिशन जैसे ही पढ़ोगे तो उसके अंदर जितनी भी पार्ट्स आप लेबल करते हो ना डायग्राम के अंदर, हर एक पार्ट के बारे में आपको उसका फंक्शन पता करना है. तो वहीं पे आपके मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं. अब बैक्टीरियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि रेस्टिंग सेल से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिस्ट कौन से बनाते हैं, एंडोस्पोर्स कौन कौन से बनाते हैं, वैसे. देन दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द बैक्टीरिया. ये तीन टर्म्स हैं आपकी, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन. तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें बैक्टीरियोफाजिस. बैक्टीरियोफाजिस आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी वायरोलॉजी पॉइंट और बैक्टीरियो पॉइंट दोनों से इंपॉर्टेंट रहता है आपका. ठीक है, देन वी हैव एंटीबायोटिक्स. ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स एंड फंजीसाइड. ओके, सो दिस बोथ विल कम इन मैनेजमेंट यूनिट आल्सो. सो इन दोनों के अंदर आपको कैटेगरीज बना के याद रखना है इनके मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर कि सेल वॉल को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, प्रोटीन के अंदर इसको प्रोटीन फॉर्मेशन को करने वाली कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती है, इस तरीके से. तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज जो है वो चीजों को याद रखना है कि उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है. मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर ही हमें एंटीबायोटिक्स हो चाहे फंजीसाइड्स हो, उन्हें हमें याद करना है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें फाइटोप्लाज्मा
और फस्टिडियस प्रोकैरियोट्स। अब फाइटोप्लाज्मा और जो एफवीबी होते हैं, इनके अंदर एक तो इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्टली जैसे वायरस में पूछी जाती है अबाउट द वेक्टर्स, सो हियर आल्सो दे कुड डायरेक्टली आस्क दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज ट्रांसमिटिंग दिस पर्टिकुलर डिजीज, और which of the following is not a phytoplasma disease और which of the following is not a viral disease। तो वो फाइटोप्लाज्मा की एक डिजीज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर से क्वेश्चन आ सकता है। देन बैक्टीरिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करती हूँ अगर, तो एक तो इनकी वेरिएबिलिटी, सबसे पहले तो इसकी मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर जितने भी मेजरली चीज आते हैं, जैसे स्पेसिफिकली फ्लैजिला हो गया, ठीक है। कोई स्पेसिफिक स्टेन्स आप जरूर देख लेना इसमें। स्टेन्स जो होते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग से इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कौन से पार्ट को स्टेन करने के लिए हम क्या एजेंट को यूज करते हैं, ठीक है। वेरिएबिलिटी आ गया आपका। इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका दैट इज सिक्रीशन सिस्टम, ठीक है। ये तो जरूर आपको पढ़ना है बोथ फॉर द एएसआरबी एंड फॉर योर एसआरएफ, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया है, सर्वाइवल से पूछ लिया आपका, कहाँ ये रहता है, सर्वाइव करता है। देन ये सिक्रीशन सिस्टम इन एग्रोबैक्टीरियम, तो इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे कि आपको पैथोजन का नाम या एग्जांपल देके पूछ लेंगे कि इनके अंदर कौन सा सिक्रीशन सिस्टम चलता है, या आपसे सिक्रीशन सिस्टम के थ्रू कुछ बीच में पूछ लेंगे कौन से सिक्रीशन सिस्टम को हम इंजेक्टोसोम बोलते हैं, कौन सा सिक्रीशन सिस्टम मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होता है। Okay, like which of them is very common in all of them and which is specific to gram-negative bacteria, which of the following is known as injectosome, which is known as auto-inducer or auto-transporters। तो इस तरीके के डायरेक्टली क्वेश्चन सिक्रीशन सिस्टम से पूछे जाते हैं। Then see again टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम से लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। ओके, टाइप 3 और 4 तो आप देख सकते हो लाइक इन दिस 5 years अप्रोक्सीमेटली इन 3 years आपका सिक्रीशन सिस्टम से क्वेश्चन आया है। दैट मीन्स कि ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। देन वी हैव प्लांट वायरोलॉजी। अब प्लांट वायरोलॉजी के अंदर पहली इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है दैट इज द क्लासिफिकेशन। तो आपकी माइको, बैक्टीरियो, वायरो तीनों की क्लासिफिकेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। So if you are like preparing for the PG examination, na, so for PG examination, if you are just covering the broad part, then it is sufficient for that. Okay, if you are not getting in very deep for that, तो चल जाएगा. But if you are preparing for the ASRB or the SRF examination and you want to secure a single digit rank to get into the IRI or other major institutions, so you can't leave any of the topic importantly. So classification is very, very important topic and we can't skip it. The only strategy is that you can means it's a very broad topic, so you can just learn it any of your way, make your own way। ऐसा नहीं है ना कि अभी तक अगर किसी को याद नहीं हुई है क्लासिफिकेशन तो आपको याद हो नहीं सकती है। सो जस्ट मेक योर ओन ट्रिक्स, मेक योर ओन टेक्निक्स एंड ट्राई टू लर्न देम इन अ वेरी सिंपल मैनर एज पॉसिबल। जैसे भी कैटेगरीज बना सकते हो, आपसे वहां कोई नहीं पूछेगा कि आपने याद कैसे किया है। There, if you will remember, you'll get good marks. If you won't remember, then your marks will be deducted. Nothing else. So you can remember it any of the way you are finding it good. You can make the any of the mnemonics. You can just write and learn. So this you have to learn. Okay. So composition, nucleic acid are there, proteins are there. Then properties are the nomenclature. Major thing that is the classification. Okay, then again variability portion you can cover separately also because this is important thing. Okay, so what is the forms of variability in fungi, forms of variability in bacteria, mechanism of different variability in viruses। Okay, so ये एक separate important topic आप अलग से notes बना के इसको याद कर सकते हो। Then इसमें भी mainly कोई भी यूनिट आप कवर करो, आपको उसके अंदर सिलेबस में दी गई हर एक टर्म जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज समटाइम्स डायरेक्टली पिकिंग फ्रॉम द सिलेबस दे जस्ट आस्क द वेरी बेसिक थिंग अबाउट द terminology that is given. Any of the topic they will ask about the very basic characteristics or the definition related point. So at least आपको कोई भी टर्म को मिस तो नहीं करना है, ठीक है। डिटेल्ड आपको बहुत ज्यादा समझ आए
चाहे ना आए, पर आपको उस बेसिक टर्म का मतलब क्लियर होना चाहिए. दैट इफ आई एम टेलिंग अबाउट द सैटेलाइट वायरस, सो यू मस्ट नो कि सैटेलाइट वायरस क्या होता है. It is a virus, that means it have nucleic acid, it have protein coat. Then satellite, what it means, that it is depending on the another virus just for their replication. They have their own system, they have their own nucleic acid, have their own protein coat, but they can't replicate themselves, so they will depend on the another virus for that. Okay, so इस तरीके से आपको हर एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए. Okay, then yeah, different detection and diagnosis techniques for different pathogens. Then we have transmission is very important, and this virus vector relationship. Okay, this 3-4 points. Like firstly thing, you have to cover all the terminology in viruses, in virology. Then we have classification. Okay, we have transmission. We have virus vector relationship. Virus vector relationship means that whether the virus is transmitted in a persistent manner, non-persistent manner और semi-persistent manner. इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है. See, these are some of the questions about like satellite RNA versus DNA viruses. So if you are cleared with the terminology, different type of viruses, different types of phages you are learning over here, so you can answer these type of question. Tospoviruses, so these type of viruses are transmitted by the thrips. Okay, then potato spindle tuber disease. सबसे पहले कौन सा पैथोजन डिस्कवर हुआ था, इससे वायरॉइड डिस्कवर हुआ था, किसने किया था, टी.ओ. डीनर ने किया था. ठीक है. देन टीएमवी के अंदर कितनी सब यूनिट्स होती हैं, तो टीएमवी जो है इसके एक स्पेसिफिक सभी प्रॉपर्टीज आप एक साथ याद कर सकते हो. कितने अमीनो एसिड्स रहते हैं, फर्स्ट टाइम कहाँ यूज किया था, किस किस चीज के अंदर जो टीएमवी है वो फर्स्ट है, किस किस टेक्निक्स के अंदर. अगर आपसे डायरेक्टली पूछे इस टेक्निक पे सबसे पहले काम किस वायरस पे हुआ था, तो आंसर विल बी टीएमवी. सो फॉर द टीएमवी एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन राइट at the same place only. Okay, then gene silencing, like RNA interference, that is a very important topic. ठीक है. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है. और आपसे पूछा गया यहाँ पे जेमिनी वायरस, जीनोम स्ट्रक्चर कैसे होती है, सैटेलाइट और हेल्पर वायरस कैसे इंटरेक्शन होता है. तो इस तरीके से आपको जो वायरोलॉजी यूनिट है, इन दी वायरोलॉजी यूनिट यू हैव टू स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस. देन यू हैव टू कवर द टर्मिनोलॉजी पार्ट फॉर ईच एंड एवरी, दैट व्हाट इज सैटेलाइट वायरस, व्हाट इज माइक्रोफेजेस, व्हाट इज बैक्टीरियोफेजेस, what is cyanophages, ठीक है, every single term. After that, go with the classification part and learn that whatever viruses are coming in single-stranded RNA, what are coming in single-stranded DNA, and so for the double-stranded. Then go for, if you are understanding, okay, this is the broad category, so you can just remember from the classification only that this whole broad category is mainly transmitted by the aphids. This specific category is transmitted by the whitefly. Okay, so that you can do. Next topic, after doing this, you have to understand that, okay, we have learned about the vector, we know what is the genetic material, and now we have to learn whether they are persistent, semi-persistent or the non-persistent. So like this, systematic wise, point wise, you have to categorize the things. And once it will be little difficult for you at once, till the time you will prepare your notes. After that, once you just completely categorize it in a simple way na, the more you will revise it, it will be very very helpful for you, and you can remember that for a very long time, I can tell you. ठीक है. Then we have epidemiology. So this is also not a very broad यूनिट, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर करने के अंदर. अब यहाँ पर आपको मेजरली जो चीज़ें याद रखनी है, इसमें भी टर्म्स याद रखनी है डायरेक्टली, दैट व्हाट इज, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट रहता है मोनोसाइक्लिक है, पॉलीसाइक्लिक डिजीज है. नाउ आई कैन आस्क यू दैट ओके जस्ट टेल मी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसाइक्लिक डिजीज. और अगर आपको स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मान लो आई विल गिव यू 5 स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द रस्ट, सो आई कैन टेल यू दैट ओके द रस्ट, wheat rust is a polycyclic.
then second I can write you that it is a polymorphic. So like that, अगर आपकी terminology clear है that polycyclic disease का मतलब होता है that it is completing many cycles in a single season, that is polycyclic. And mostly जो airborne disease होती है वो इसमें आती है. So अगर आपने directly rust नहीं भी पता, अगर आपको पता है कि rust जो है वो airborne है, तो आप कह सकते हो कि yes it is a polycyclic pathogen. तो इस तरीके से अगर हमारे कंसेप्ट यहाँ पर टर्म हमारी क्लियर रहती है तो वी कैन एटलीस्ट इफ वी हैव नॉट स्टडीड द क्वेश्चंस डायरेक्टली, एटलीस्ट वी कैन रिलेट दैम. ठीक है, ओके. इसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जैसे मोनोसाइक्लिक एंड पूछ लेते कि कौन कौन सी डिजीजेस जो है वो मोनोसाइक्लिक में आती है. साइमुलेशन मॉडल इसमें आपको ध्यान रखना है अच्छे से. Different simulation models are given and different forecasting models are given. ठीक है, इसके अलावा देयर आर मेनी टर्म्स जो कि डिफरेंट डिफरेंस के बेसिस पर आप याद कर सकते हो. व्हाट इज सर्वे, व्हाट इज सर्विलियंस, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, व्हाट इज वर्टिकल रेजिस्टेंस, व्हाट इज मोनोसाइक्लिक, व्हाट इज पॉलीसाइक्लिक. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल कम इन द डिफरेंस फॉर्मेट. सो इस यूनिट के अंदर जो भी आपको रिलेटेबल टर्म्स लगती हैं आप इसके यूनिट्स में उनके डिफरेंस बना के ही आप उनको याद कर सकते हो. आपको सेपरेटली लिखने की नीड नहीं है, तो वैसे आपको ज्यादा इजीली याद होंगे. सो वट एवर द थिंग्स यू आर फाइंडिंग that they are very relatable and coming in the same category, so we are getting confused in both of them, so just make a difference table and highlighted that what are the key differences between them, so that based on that key differences you are able to remember over there in your exam that okay, if this point is coming, that means this will be the answer. Okay, then we have phanerogamic parasite and non-parasitic diseases. So if you want to like get a motivation na, just I told you for the bacteriology, same for this also. So if you want to like feel good that I have completed my one unit, so you can go for this unit, because in this unit this is just you have to remember the major 4 or 5 phanerogamic parasites. Okay, total root, total stem, this is the general question. And second thing you have to remember of the non-parasitic diseases, that means firstly very important you have to remember the nutritional deficiency diseases. Whatever the diseases are causing due to the zinc deficiency, molybdenum, then manganese, तो ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए चीजें कि कौन कौन सी किसकी वजह से हो रही है. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन भी देखो, लिटिल लीफ ऑफ एप्पल किसकी वजह से, विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर. तो इस यूनिट से जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है. ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं दैट दे कुड आस्क एनी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और ट्विस्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट. सो दिस इज अ वेरी डायरेक्टली, इट इज अ वेरी स्कोरिंग यूनिट. सो जस्ट complete it and just revise it again and again daily. ठीक है, then we have unit 9 and unit 10. So for the preparation of the diseases part, whether it is the fungal disease or whether it is the bacterial disease, so we are having 2 or 3 types. So whatever type is suitable for you, you can refer to that. First a technique to remember, like very simple, crop wise. Okay, so daily before sleeping, okay, you can do one thing, that you have to keep the target that daily I have to cover the diseases of a single crop, because you have already studied this crop diseases in your bachelor's also, in your master's also. So here most of the things we have already covered. Okay, and when we generally discuss with our friends or any senior na, so we are remembering that also. But when we are specifically thinking about covering this unit for our examination, so we used to think like there are a lot of diseases, we don't know anything about the diseases. But actually many of the things, because we have revised them so often, so we already know that. So just we have to compile them in a systematic way. So first category you can do is like crop wise, that daily you can cover. Okay, if any crop is like very lengthy, like rice and wheat, or 2-3 crops are there that is very lengthy, they are having multiple diseases, you can give like 2 days to each. Then rest of the small you can do just okay, I have to revise one crop daily no matter what. Okay, so like for example I am revising the bajra or the pearl millet today. So what I will do, firstly I'll just gather the source. So for this you can refer to any of the single book, or you can refer your BSc notes also.
whatever notes you have made in your masters or the Engru notes, any of them, because fundamentals is same in every of them. If it is a soil borne disease, it will be the soil borne disease in everyone. So the major thing that you have to remember in the diseases is their causal organism, their specific symptom. No need to remember like 4 5 symptoms in them. What is the peculiar symptom? That what is that symptom? When you will go in the field, if you are seeing that symptom, then you can say that okay, this is a specific disease, or there is the most probable chances of this disease. Okay, just the specific symptom. Then you have to remember about the etiology, that if the pathogen is there na, so you have to remember the general things. So you don't, if you are remembering like about the fusarium, okay, so if fusarium is forming some specific type of conidias, then it will be same for everyone na. So wherever fusarium will come, the macroconidia will come over there. तो आपको बार बार अलग से क्यों रटना है उसे? जब हमें एक बार क्लियर हो गया कि फ्यूजेरियम में किस टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, किस टाइप के कोनिडियाज हैं, उनकी शेप कैसी है, हमें पता है कोलेटो में कैसे बन रहे हैं, तो अब जहां जहां कोलेटोट्राइकम आएगा तो हम उसे रिलेट कर सकते हैं कि कोलेटोट्राइकम में फाल्केट शेप के कोनिडिया होते हैं, उसमें ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं. अब वो कोई भी डिजीज कॉज करेगा, कहीं भी एंथ्रेक्नोज करेगा, तो सेम सी चीजें प्रोड्यूस करेगा वो. तो यहाँ पर आपको जो कॉमन चीजें हैं वो आप एक तरफ कर दो. अच्छा, जब आप क्रॉप वाइज पढ़ रहे हो तो ओके, बाजरा है, दिस 3 और 4 डिजीजेस वी हैव. नेम ऑफ द डिजीज, इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखो. सेकेंड डिजीज, दिस पॉइंट. ट्राई टू कवर ईच क्रॉप इन अ सिंगल पेज इन योर रिविजन. जब आपके पास हर एक क्रॉप की जो डिजीजेस वाला पार्ट है वो आप सिंगल शीट के अंदर कंपाइल करने लग जाओगे ना, तब आपकी वो डिजीज पोर्शन क्लियर हो जाएगा. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंडिकेटर थिंग दैट इफ दिस विल हैपन, दैट मीन्स यू कैन एश्योर योरसेल्फ दैट यू नो एंड यू हैव रेड इट नाइसली. Okay, so just recall them. So once go through them daily for like take 2 days for each crop, but daily you have to remember. Okay, so you don't have to give a specific time to only for the diseases portion, because to remember the factual things, this is the only technique that do them daily in minute portion, rather than giving like okay, for this 1 week I'll just read about the diseases only, then you will again forget it in the next week. So daily just go through a little portions. Like for the history, so for example, if you're giving full time to your preparation, your exam is there in November or SRF is there in June July, then daily you have to divide the specific things. For example, for daily, if I'm studying for 5 to 6 hours, okay, then daily like half an hour minimum, depends on how much time you are giving overall. So for 5 to 6 hours, for example, daily half an hour you will study the history portions. You will remember the scientist, you will remember the years that you are forgetting for a specific topic. Then okay, half an hour you will give for the diseases part. Okay, you can extend it to like 45 minutes or 1 hour as per your how much time you are giving, but daily to this 4 portion, these 2 portions. Okay, one is history part and second is the disease part. You have to allot a specific time to yourself every single day. Minimum, I am telling you half an hour. Maximum, you can do whatever you want, but you have to do this both topic. And I can guarantee you, if you will do this for 1 month, na, you will see the differences in your preparation. Yourself only you will analyze this, that okay, we are now recalling everything. We are now, whenever we are thinking of a topic, okay, we are recalling that okay, we have studied that. Okay, so just try this technique for 1 month and you will definitely see the differences. Just fix the timing for this both topics, and rest of the time you can give to that whatever topic you are specifically preparing for. Okay, then same for the bacterial diseases. Now the last unit, and that is the management. Now this is a very vast unit, very lengthy, very big unit. तो इतनी बड़ी यूनिट है इसके अंदर, तो बहुत सारी चीजें तो हमें समझ ही नहीं आती कि इस यूनिट में पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है. तो हम क्या करते हैं कि इस यूनिट को हम थोड़ा सा कंसाइज कर लेते हैं कि बेसिकली कैटेगरीज हमें कौन कौन सी पढ़नी है. अगर हम इस मैनेजमेंट की यूनिट को 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक तो हमारे पास आ जाता है लेजिस्लेटिव पार्ट. लेजिस्लेटिव पार्ट जिसके अंदर हमारे पास क्वारंटीन से रिलेटेड आ जाता है, तो एक तो हमें ये पढ़ना है.
अब क्वारंटाइन से रिलेटेड की कौन कौन सी मेजर डिजीज जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई है, कौन कौन सी डिजीज हमारे इंडियन एस्पेक्ट के अंदर क्वारंटीन इंपॉर्टेंस रखती है, कि जिसे चाहे वो डोमेस्टिक क्वारंटीन है चाहे वो नेशनल क्वारंटीन है। ठीक है, दूसरी चीज जो रहती है हमारे पास दैट इज केमिकल। तो केमिकल कंट्रोल के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। अब चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो चाहे वो फंजीसाइड्स हो, जिनका मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दैट यू हैव टू रिमेंबर बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ एक्शन, कि वो काम क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपको समझना है कि ये डिफरेंट फंजीसाइड्स या डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं और वो ये काम करती है इन पैथोजेंस के साथ वो डील करती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो, ये पार्ट हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड दूसरी चीजें आ जाएंगी। उसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि डिफरेंट बायो कंट्रोल एजेंट कौन से हैं, फंगल पैथोजेंस के लिए कौन से हैं, माइको हर्बिसाइड्स कौन से होते हैं। तो इस तरीके से जो बायो कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं यहाँ पे वो इस तरीके से पढ़ने हैं। कौन कौन से एंटागोनिस्टिक पैथोजेंस हैं, उसमें भी सेम आपको मेजर डिजीज के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि रस्ट, पहले तो 4 ही मेजर रहती है हमारे पास, रस्ट, स्मट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। तो इन चारों के फंजीसाइड्स कौन कौन से यूज होते हैं, इन चारों के अगेंस्ट ही अगर कोई बायो कंट्रोल एजेंट है तो वो वहीं पर लिख लो। तो इस तरीके के ना सेपरेट बॉक्सेस जो है वो बना के रखो कि कुछ चीजें जो है वो डायरेक्टली याद कर सकते हो। एटलीस्ट इन 4-5 जो मेजर पैथोजेंस हैं आपके, विल्ट कॉजिंग पैथोजन हो गया, रस्ट हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, एंथ्रेक्नोज हो गया। तो जो बेसिकली आपकी डिजीज वाइज कैटेगरी है ना, उस अकॉर्डिंग आप चीजों को रिमेंबर कर सकते हो। तो लास्ट में आप कुछ फ्लो चार्ट्स बनाना अपने, जो भी आपकी नोटबुक रहेगी उसके अंदर यू कैन मेक सम फ्लो चार्ट्स, जिसके अंदर आप कॉमन चीजें कंपाइल कर सकते हो। दैट इन लाइक for example this is your notebook, and while you are revising, just if you are writing about anything about the rust, so whatever the point you are studying in your course and whatever the specific point that is coming related to the rust, you can just write it here also. Okay, so at the end what will happen कि when you are remembering about the rust, तो आपको रस्ट से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो आप एक ही जगह कवर कर पाओगे। जैसे कि रस्ट जो है, रस्ट की वजह से सिम्टम कैसे कैसे आते हैं, रस्ट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से साइंटिस्ट ने काम किया था, रस्ट कॉज करने वाले डिफरेंट जेनेरास कौन से होते हैं। और ये क्वेश्चन एएसआरबी के अंदर भी पूछा गया है कि आपको 4 to 5 जेनेरास दिए गए थे एंड दे वर इट वाज आस्क्ड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा इज नॉट कॉजिंग रस्ट। तो वो चीज आप रस्ट के साथ ही यहाँ याद कर सकते हो। तो दिस दे विल आस्क ओनली फ्रॉम द मेजर कैटेगरी ऑफ द डिजीज। सो सिमिलरली आपको स्पेसिफिक एफर्ट नहीं लगाने, आप बस ब्रॉड कैटेगरी बना लो। जब भी आप अपनी यूनिट्स रिवाइज कर रहे हो उसके अंदर जो भी पॉइंट आपको स्पेसिफिक डिजीज के अकॉर्डिंग मिलता है आप उस चीज को वहां रख दो। तो वो आपके एक जो लास्ट फाइनल नोट्स होते हैं ना उसके अंदर ये चीज आपको हेल्प करेगी। सो वाइल यू विल रिमेंबरिंग दिस यू कैन रिमेंबर द होल रस्ट कैटेगरी। डिफरेंट क्रॉप्स में कौन कौन सी रस्ट है आपको अलग अलग पढ़ने की जगह आप एक दूसरा तरीका है डिजीजेस को भी ऐसे याद करने का। द होल रस्ट डिजीजेस यू कैन रिवाइज इट एट वन। द होल स्मट डिजीजेस आप एक साथ याद कर लो कि कौन कौन सी स्मट इंटरनली बोर्न है, सीड बोर्न है, कौन सी एक्सटर्नली सीड बोर्न है, कौन सी सॉइल बोर्न है। तो जितना भी स्मट का पार्ट रहता है वो सब हम एक साथ याद कर लेंगे। एंड आई थिंक दिस इज द वेरी गुड वे टू रिमेंबर द डिजीजेस पोर्शन। ठीक है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक पैथोजन, कि उस पैथोजन के लिए हमारे पास बायो कंट्रोल कौन सा यूज होता है, रस्ट के लिए हम फंजीसाइड्स कौन सी यूज करते हैं, कौन कौन से जेनेरा रस्ट को कॉज करते हैं, और मेजर डिजीज के एग्जाम्पल आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए सिम्टम्स कौन सा मेन होता है हमारे पास, और भी या इसके स्पोर कैसे दिखते हैं, एवरी सिंगल थिंग। तो अगर आपको सेपरेटली वहां पर इतना सब पढ़ना, आई थिंक उससे बेटर है कि आप एक एक पूरी कैटेगरी को एक साथ याद कर लो, तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा एक फाइलम ही याद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो कि मैनेजमेंट में कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस। फंजीसाइड से रिलेटेड पूछे गए हैं, सिस्टेमिक फंजीसाइड्स कौन सी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट कौन से हो गए, जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जियानम हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, अब कल्चरल प्रैक्टिसेस में बहुत जनरल चीजें नहीं आएंगी, कल्चरल प्रैक्टिसेस में आएंगी अगर किसी डिजीज के लिए समथिंग स्पेसिफिक इज गिवन। कि अगर आपसे बोला कि क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स की मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सो वो स्पेसिफिक चीज हम रिपीटेडली पढ़ते हैं दैट क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर जो है वो एसिडिक पीएच पे होता है। और अगर कोई पैथोजन दैट इज सर्वाइविंग इन द एसिडिक पीएच एंड वी हैव टू मैनेज इट, सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट समथिंग बेसिक इनटू इट दैट विल न्यूट्रलाइज इट, और उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा।
तो इस तरीके से चीजों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। अब यहाँ देखो, जैसे मेटालिक्सिल है, मेटालिक्सिल कैटेगरी में कौन कौन सी आती है, तो फंजीसाइड जितने भी केमिकल एजेंट्स हैं उन्हें हमें मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से याद रखना है। नाउ ये पूरा सिलेबस होने के बाद अब मेनली आ जाता है कि इतना कुछ हमने पढ़ लिया कि ये चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन पढ़ना कहाँ से। तो देखो, मेजरली वी हैव नो लिमिट ऑफ द बुक्स, there are so many good books, so many fundamental books are there, but if we have a limited time we can't read all of them, so we have to specify our sources. While preparation we have to fix our sources and then go for it. We don't have like if one person is saying okay read this then you will buy this also, तो आपकी वो पहली बुक भी खत्म नहीं होगी, दूसरी बुक भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो फॉर जनरल एग्रीकल्चर आई वुड सजेस्ट कि ये अभी लेटेस्ट है and I have seen this. This is Advanced Fundamentals of Agriculture by Ashok Singh Malwa. बहुत प्रिसाइजली वे में दे रखा है एंड फॉर एवरी सिंगल एग्जाम जिसमें जनरल एग्रीकल्चर पूछी जाती है उसके लिए बहुत ऑप्टिमम चीजें दी गई हैं। सो एज कंपेयर टू इफ आई टॉक अबाउट लाइक अरुण कात्यान, आई एम नॉट लाइक talking negative about any book, but I'm just telling about the my review कि अरुण कात्यान कंपैरेटिवली आई थिंक कि अगर आपके लिए यहाँ पर जो प्रायोरिटी है दैट इज योर सब्जेक्ट्स। सो फॉर जनरल एग्रीकल्चर द बुक मस्ट बी दैट देयर जिसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं आपके वो बहुत अच्छे से समझाए हो कि ठीक है ये की पॉइंट्स हैं, तो टू द पॉइंट चीजें जो है वो आपकी क्लियर की हो। तो इस बुक के अंदर हर एक सब्जेक्ट को सभी मेजर पॉइंट्स को उन्होंने कवर किया हुआ है, ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने कोई भी मेजर टॉपिक लीव किया हुआ है, और बहुत प्रिसाइज वे से पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट वाइज चीजों को उन्होंने कवर कर रखा है यहाँ पे। सो दिस इज अ वेरी गुड बुक। सो दैट इज बोथ वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 एंड जितने भी आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके सभी के सभी जो है वो इसके अंदर कवर रहते हैं। वो आपके एकदम जनरल एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी सॉइल से लेकर आपके स्टैटिस्टिक्स और वहां तक सब कुछ कवर है। Then this is the Bible or godfather of everyone, that is Nimraj Sunda, and for the objective we have Objective Agriculture by S.R. Kantwa. Okay, so for the entomology, now पैथोलॉजी ठीक है हम पढ़ लेंगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम एंटोमोलॉजी और इनको कैसे डील करें। तो एंटोमोलॉजी के जब हम सोर्सेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो सोर्सेज के अंदर यहाँ पर मैंने आपके लिए एंटोमोलॉजी की भी पास्ट ईयर एनालिसिस दे रखी है। सो एज देयर इज नो स्पेसिफाइड सिलेबस फॉर द क्रॉप साइंसेस पार्ट, अब पैथो का तो हमें दे रखा है सिलेबस, लेकिन एंटो निमेटो सेरिकल्चर का कोई स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो हमारे पास नहीं है। तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ब्लाइंड रह जाती है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, किन किन को छोड़ना है। हमें पूरी एंटो हम नहीं पढ़ सकते एज ए पैथोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके अंदर आपके लिए जो बुक रहती है दैट इज वेरी गुड बुक, दैट इज एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर। बहुत अच्छे से चीजों को समझाया हुआ है। एंड इसके अलावा यू हैव इंसेक्टा वॉल्यूम 1 एंड 2। ये बुक्स जो हैं ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये आपको रेफर करनी है, ये आप कर सकते हो रेफर फॉर योर SRF examination. Now, here I have given, because I can't just explain each and every of, but यहाँ पर इस past year paper के analysis से you are able to find that which of the important topics are there. जैसे अगर मैं few enlist करूँ आपके लिए, सेरिकल्चर से जो क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो सेरिकल्चर से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, या तो कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट सेरिकल्चर से रिलेटेड है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो डिफरेंट अगर उसके अंदर स्पीशीज हैं आपकी तो उनका होस्ट प्लांट कौन सा है, ठीक है। मलबरी किसके लिए, कौन सी स्पीशीज के लिए है, अशोका किसके लिए है, इस तरीके से उनसे पूछा जाएगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जाती है कि सिल्क वर्म के अंदर डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं और क्या उनका कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट है, तो बस वो हमें याद करना है। तो सेरिकल्चर में मेजरली जो टॉपिक्स आते हैं वो पूछे जाते हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स, फ्रॉम द होस्ट स्पीशीज एंड फ्रॉम द डिजीजेस। ओके, सेम अगर हम बात करते हैं, दिस इज योर फ्रॉम एंटोमोलॉजी। निमेटोलॉजी के अंदर आप देखो, एक तो आपको जर्नल्स का ध्यान रखना है। सो दिस जर्नल्स टॉपिक इज कॉमन फॉर बोथ पैथो, एंटो, निमेटो, एवरी सिंगल थिंग। जो भी इंपॉर्टेंट जर्नल्स है आपकी, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है, स्पेसिफिकली अगर मान लो निमेटो के रिलेटेड है, सेरिकल्चर के रिलेटेड है, या जैसे बायोटिक ए बायोटिक स्ट्रेस का है वैसे करके, ठीक है। तो इसका इंडियन जर्नल निमेटो की, अब क्योंकि एक दो चीजें हैं जो माइनर टॉपिक्स होते हैं उनके अंदर एक दो स्पेसिफिक एग्जांपल होते हैं, तो उसका ईयर पूछा आपसे, ठीक है। इसके अलावा आपसे
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पूछ लिया, बर्सल रेस के बारे में पूछा है यहाँ पर। ओके, मोलिया डिजीज किस में होती है? अब निमाटोड से होने वाली जो मेजर डिजीजेस हैं उनका डायरेक्टली कॉजल ऑर्गेनिज्म आपसे पूछ लिया। अब कोई कॉम्प्लेक्स डिजीज है, जैसे अब हम पढ़ते हैं इसमें टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट पढ़ते हैं, सो देयर इज बोथ निमाटोड एंड बैक्टीरिया। तो इस तरीके से स्पेशली आपको चीजें ध्यान रखनी है, और कोई भी डिजीज आपको पढ़नी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीजेस कौन सी एक रह जाती हैं जो इंडियन एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, जिनको इंडिया में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया हो, तो उनके आने के चांसेस जो होते हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं। ओके, सो हेयर ऑल्सो वी हैव निमेटोलॉजी हो गया आपका, सेरिकल्चर हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया। इनमें बायो कंट्रोल बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बायो कंट्रोल पार्ट इनका बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। डिजीजेस आपको इनकी बहुत अच्छे से देखनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे ओफरा डिजीज है तो किसकी वजह से हो रही है, क्या मैनेजमेंट है इसके अंदर, ऊजी फ्लाई डिजीज कर रहा है, ऊजी फ्लाई को कैसे मैनेज करेंगे, सबसे मेजर पेस्ट कौन सा होता है जो इस तरीके के सिम्टम प्रोड्यूस करता है सिल्क वॉर्म में, इस तरीके से चीजें पूछते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री देखो, पहला प्लांट पैरासिटिक निमाटोड किसने रिकॉर्ड किया था इंडिया में, ठीक है। और जो मेजर जेनेरास हैं आपको उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, कि जनरल मॉर्फोलॉजी। तो बेसिकली आप इन टॉपिक्स को, या आप खुद भी एक बार डिटेल्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ओके, जैसे ईपीएन, एंटोमोपैरासिटिक निमाटोड्स आपके हो गए, ठीक है। और बायो कंट्रोल, ये तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका हर एक चीज से, ठीक है। तो इन बुक्स को आप पास्ट ईयर पेपर जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, आपको डिटेल्ड क्वेश्चन वहां मिलेंगे, तो जो जो पेपर आप सॉल्व करोगे उससे रिलेटेड जो है वहां से आपने देखा कि जैसे एक पेपर को आपने एनालाइज किया, तो यहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी, जो चीज मैंने यहाँ दे रखी है, आप यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हो, जैसे पॉलीफेगस पेस्ट है, तो अब यहाँ पर रिमेम्बर कर सकते हो, You can start again. Veg or non-veg? वेज, Veg. ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉलीफेगस पेस्ट है, तो डिफरेंट पॉलीफेगस पेस्ट जो होते हैं वो कौन कौन से रहते हैं पॉलीफेगस पेस्ट, ठीक है, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आप देख सकते हो। तो वेन एवर यू आर सॉल्विंग द पास्ट ईयर पेपर, स्पेशली फॉर द क्रॉप साइंसेस पार्ट, जो आपको रेफर करना ही चाहिए, तो यहाँ पर जैसे कुछ टॉपिक्स मैंने आपको दे रखे हैं, यू कैन गेट अ गुड आइडिया दैट विच ऑफ द टॉपिक्स यू हैव टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, ठीक है, लाइक दिस। यू कैन जस्ट गेट अ हेल्प फ्रॉम देम, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए एनालाइज करके यहाँ रखा है। सी फॉर द सेरिकल्चर लाइक दिस, सिल्कवॉर्म बायोलॉजी, मैनेजमेंट, ओके, डिजीजेस, तो ये तीन चार चीजें जो रहती हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं इसके लिए। सी इंस्टीट्यूट्स, होस्ट प्लांट्स, डिजीजेस, तो इन्हीं चीजों से लाइक मॉडिफाइड रिपीटेडली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट जो इसमें टॉपिक्स आपको दे रखे हैं इंपॉर्टेंटली, उस अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन या अपने नोट्स आप उस अकॉर्डिंग रेडी कीजिए। और जो 3 बुक्स मैंने यहाँ पर रेफर किए हैं उनको आप जब बहुत थोरोली चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी डेली आप उसको साथ में पढ़ते रहेंगे यहाँ पर, या एक स्पेसिफिक टाइम आप देंगे, तो अराउंड आई थिंक अगर आप 2 मंथ्स भी देते हो इनको, तो फॉर लाइक 2 months if you will give them nicely your crop sciences part, so you can easily secure good rank, okay. बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट समटाइम्स क्या होता है कि हम क्रॉप साइंसेस में फोकस करने की वजह से जो हमारा खुद का स्ट्रेंथ है हम उसको मिस कर देते हैं, कि हमें, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जिनको स्ट्रेस रहता है कि हमारी एंटो कैसे होगी, निमेटो कैसे कवर करेंगे, सेरिकल्चर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, एंड बाय फोकसिंग मच ऑन देम, ठीक है, दे आर जस्ट नेग्लेक्टिंग इन अ वन वे और अनदर देयर ओन सब्जेक्ट विच इज देयर स्ट्रेंथ and which is the major scoring part for them. So if you are having great command in your subjects, then if you can just compensate 1 or 2 questions from this crop sciences part in your own subject also. तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में ट्राई करो कि आपके बहुत रेयरली कोई नेगेटिव जाए आपके सब्जेक्ट के अंदर, तो आपके अगर 1-2 क्वेश्चंस उसके अंदर और गलत हो भी जाते हैं तो यहाँ पर आपका मेजर सब्जेक्ट उसे बैलेंस कर लेगा। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर मेजर सब्जेक्ट due to any other subject in this, because that is the most scoring part for you. And now coming to the book portion for our plant pathology, so that is for mycology. Basically, see, this is the very fundamental that you have
I think every one of you have read it through your JRF only. So fungi, bacteria and virus. This book will give you a broad overview of all the three different units. What is fungi, what is bacteria, what is viruses. Now the modern advanced part, this I also think that you most of you are having or you are starting reading for this modern plant pathology. So all of the basic concept which were given in this will be covered in this. So if you have earlier read this, then you don't have to, okay, just go for this. Just read this one book. Okay. Then this book, I'll tell you, this is the your like for classification, this is your major source. Okay, so your Hoare-Kirk et al. Classification, this is the latest edition of this book, and properly detailed classification is given in them. Okay, so you have to refer for classification, it is properly in this book. For bacteriology, we have two major books, that is K.K. Mondal and second is of Jayaraman and Jayashree Jayaraman. So this is a very, very like thin, crisp handbook like that. Very thin book that अगर आपको बेसिक्स कवर करने हैं बैक्टीरियोलॉजी के सारे और आप बहुत if you give like proper time to this book, you can cover this book like if you are having the basic idea of bacteriology na, I think you can cover this book in like 4-5 days only. The complete book, it's very thin. Some people can cover this in less than that time also. I'm telling you maximum you can cover this in 5 days if you're giving like properly understanding in a flow. You are reading the complete bacteriology, and then this is the major book, that is by K.K. Mondal. For virology, see, if you haven't read this, because this is a very lengthy book, okay, so honestly I'm speaking that you can refer this book अगर आपको अपने कोई specific topics को समझना है. For example, अगर आपको specifically replication का part नहीं समझ आ रहा है, जैसे different viruses के अंदर replication कैसे कैसे हो रहा है, single stranded में कैसे होता है, RNA में कैसे होता है, उस तरीके से. तो like for a specific topics, if you have to clear your concepts, तो आप इसको refer कीजिए, ठीक है. And if you're preparing for your NET, okay, so you are in PhD or you are in MSc final year or whatever, if you're specifically targeting for the NET, then you can start reading it, okay. But if you are like preparing for this June entrance exam and you have to cover much more things also other than the virology also, so I don't tell you to read like thoroughly with that, but just take this as a source to cover the weak points or to understand the major topics. जैसे रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, देन उसके बाद इन्फेक्शन प्रोसेस में कोई स्पेसिफिकली समझना है, वायरस वेक्टर रिलेशनशिप में कुछ स्पेसिफिक समझना है, तो स्पेसिफिक टॉपिक्स के कंसेप्ट को डिटेल्ड में समझने के लिए आप इसको सोर्स को रेफर कर सकते हो. अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड बुक, वेरी प्रिसाइज बुक, जो आप अच्छे से कवर भी कर सकते हो, टाइमली कवर हो जाएगी. सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इसमें मेंशन्ड है, सभी टेक्निक, सभी प्रोटोकॉल्स, हर एक टॉपिक जो है वो इसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है. तो ये तो आपको कंप्लीटली अच्छे से पढ़नी है. दिस यू कैन रेफर फॉर much clearly or deep understanding of your concept. Then godfather of the whole pathology, ठीक है, and this is the G.N. Agrios plant pathology. So अगर आप ARS के लिए तैयारी कर रहे हो, so this is one of the must go to book, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से आपके जो concepts हैं, detailed concept, तो वो बहुत अच्छे से यही clear कर सकते हैं. सब बाकी बुक्स के अंदर भी वो चीज़ों हैं, बट जितना डिटेल्ड, जितना कोर तरीके से इसमें समझाया हुआ है, जितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलोंग विद लाइक वेरी ब्यूटीफुल इमेजेस आर गिवन इन दिस बुक, तो दिस इज अ वेरी वेरी मस्ट read book. If you are a plant pathology student, then this is a must read book for you. ठीक है, तो जैसे कुछ टॉपिक्स, अब जैसे हमने फिजियोलॉजी की बात करी, तो वो यूनिट जो है वो अगर आप उन टॉपिक्स को इसमें से पढ़ोगे आप, तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद आपको कहीं भी और कोई डाउट लेके जाने की नीड पड़ेगी. ठीक है, तो बहुत ही डिस्क्राइब, बहुत इलेबोरेट वे के अंदर वो दिया हुआ है. ठीक है, देन अगेन सेम थिंग कि अगर आपके बाकी सिलेबस काफ़ी पड़ा है SRF के लिए और भी चीज़ें कवर करनी है, तब मैं कोई भी बहुत बड़ी बुक मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी पढ़ने के लिए, जैसे रोजर हल हो गई और ये हो गई. अगर आपके पास अभी टाइम कम है, आपको बाकी चीज़ें पेंडिंग है, देन आप सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए नहीं यूज़ कीजिए. बट आप नवंबर वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अपने ASRB को टारगेट कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको पढ़ना, अगर आपने नहीं शुरू किया है देन आप शुरू कर दीजिए इसको पढ़ना. ठीक है, स्पेसिफिकली जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें सभी आपको कवर करने हैं अच्छे से. डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छे से बताया हुआ है इसमें, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस बहुत अच्छे से बताई हैं,
जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, हर एक टर्म को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, ठीक है। सो ये उसके लिए है। अब ये रहते हैं आपकी ग्लांस की बुक्स, इनमें से आप कोई भी रेफर कर सकते हो, लाइक फ्रॉम दिस M.K. Yadav. This I have referred during my JRF, and after clearing of the JRF exam, I have referred, I think, to every single person. If I have made the video also, then also I am referring to this, because this book has really helped me during my preparation, because I was not having any of the single guidance that how to prepare for the plant pathology. Okay, so this book really helped me. So it's a very good book. Then again, this is a when you will complete, एक बार जब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, आपने चीजें क्लियर कर ली, कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, उसके बाद ही ये बुक पढ़नी है आपको, पहले नहीं पढ़नी। This book you have to read like when you have completed all your syllabus. You can go through this like 1.5 months or 2 months before. ओके, लाइक 1.5 months पहले भी अगर आप इसको पढ़ने लगोगे ना अच्छे से, तो भी बहुत अच्छी बुक है। बट दिस इज अ फैक्चुअल बुक, वन लाइनर बुक, तो इसको पहले पढ़ने का नहीं लॉजिक बनता। तो ये बुक आपको सिर्फ तभी पढ़नी है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन दिस इज फॉर द ऑब्जेक्टिव। श्रीनिवास की बुक आप एक ग्लांस में, इसमें वन लाइनर भी है, कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं। देन फॉर द ऑब्जेक्टिव्स you can go for Utpal Kumar Bhattacharya. You have objective plant pathology for Susanta Manik, by Susanta Manik, and this currently very trending book, both of its volume, ठीक है। और ASRB नेट के लिए भी आप इस बुक की दोनों वॉल्यूम्स को रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से इसमें मेंशन्ड है, सभी ऑब्जेक्टिव्स यूनिट वाइज जो है वो इसमें कवर किए हुए हैं। एंड नाउ द फ्यूचर, अच्छा एक बुक आप यहाँ पर लाइक कोर बुक्स में ना, फॉर कवरिंग द प्रिंसिपल पार्ट, for covering this principal part, you can refer to R.S. Singh. Principle of Plant Pathology by R.S. Singh, or you can go for the Angru notes. But if you can read the book, na, then I'll recommend this one. Okay. For understanding the principal concept, you can go for Principle of Plant Pathology by R.S. Singh. Okay. So I think I've tried my best to explain you and to guide you for your preparation, and I hope that this video will help you throughout your preparation. And the future aspect for this is you can go for agricultural research scientist if you are preparing for ARS, yes, ASRB examination you are giving, you are going for the assistant professor, any of the state related post in your subject, then this will be helpful. Research and development in any of the CSIR institute or any labs are there. Then Central Silk Board, FSSAI, because in some institutions, especially silk institution, they are also referring some, this syllabus will only come in that. So this all things will be useful for that also if you are a scholar. Okay. Then Central Warehouse Corporation, these are some. Okay. And along with that, if you have seen some of our videos and if you like the teaching, the way of my teaching, ठीक है, कि अगर आपको समझ आ रही है चीज़ें और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए कि आपको किस तरीके से एक फ्लो में प्रिपेयर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर कोर्सेज, ठीक है। हमारा डिफरेंट, हमारा पीजी का कोर्स, हमारा एसआरएफ का कोर्स और हमारा एएसआरबी नेट का कोर्स, तीनों कोर्सेज जो हैं वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। एंड एज ऑन द ओकेजन ऑफ 26th of January, देयर इज अ वेरी ग्रेट ऑफर फॉर यू, देयर इज फॉर इन एवरी मास्टर कोर्स बहुत सुपर्ब ऑफर आपको वहां पर मिल रहा है, तो आप उस ऑफर को क्लेम कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन आवर फैमिली एंड वी विल वर्क हार्ड and I'll try my 100% and I'll guide you in any way possible to help you secure a very good rank in your exam and getting into a very good institution and get your dream job. So I hope this video will be helpful for you, and if you still have any of the doubt, you can ask in the comment section and I'll surely try to solve all of your queries, all of your doubts, and I want to wish you all of the very best and keep revising, keep learning, don't get demotivated, and thank you so much.